شامین بھوکے پیٹ کپڑے دھونے میں مصروف تھی جبکہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی جہاں شہر کا ہر امیر بندہ وہاں انوائٹڈ تھا۔ وہ گیلے بدن سے چپکے کپڑے پہنے مہمانوں کے ساتھ ملنے چلی گئی۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ گھر میں بہت بڑی پارٹی ہے، سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ شی از سو ہاٹ۔ مردان ہمدان شہر کا سب سے امیر بزنس مین اسے دیکھ ایک پل میں اس کا دیوانہ ہوا تھا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ وہ اس کی سوتیلی ماں کو پیسے کا لالچ دے کے اسے نکاح کر کے اپنے فارم ہاؤس لایا تھا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے شامی، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک یتیم لڑکی، اور زبان اتنی لمبی۔ سائرہ نے ہاتھ میں پکڑا قیمتی پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخا اور زہر خندہ لہجے میں بولی۔ شامین نے فرش پر بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی اور روشن آنکھوں میں دکھ کے بجائے ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ وہ اس گھر کی وہ بدقسمت لڑکی تھی جس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا، مگر اس کے چہرے کی سادگی اور وقار کو کوئی پرانا اور دھلا ہوا لباس بھی چھپا نہیں پایا تھا۔ میں ٹکڑے نہیں کھاتی سائرہ، دن رات اس گھر کی غلامی کرتی ہوں تب جا کر 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ اور رہی بات زبان کی تو وہ سچ بولنے کے لیے ہے، کسی کی جھوٹی خوشامد کے لیے نہیں۔ شامین نے دھیمے مگر انتہائی کاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ سائرہ یہ سن کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس پل کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم نصرت اندر داخل ہوئی۔ قیمتی ریشمی ساڑی اور بھاری زیورات میں لدی بیگم نصرت اس گھر کی مالکن تھی۔ ان کے دل میں شامین کے لیے صرف نفرت اور حقارت بھری تھی، اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک تکبر کا خلاف چڑھا رہتا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم 2 ٹکے کی لڑکی؟ بیگم نصرت نے سائرہ کا غصہ دیکھ کر فوراً شامین کی طرف قدم بڑھایا اور پوری طاقت سے اپنا ہاتھ شامین کے چہرے کی طرف لہرایا۔ شامین نے پھرتی سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور وہ تھپڑ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اپنی اس بے عزتی پر بیگم نصرت کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم میرے سامنے کھڑی رہو، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جا کر سرونٹ کوارٹر کے پاس والے پرانے واشنگ ایریا میں پڑے سارے گندے کپڑے دھو، اور سن لو، جب تک سارا کام ختم نہ ہو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیگم نصرت نے انگلی کا اشارہ دروازے کی طرف کیا اور چلائیں۔ شامین نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خاموشی سے کپڑے وہیں چھوڑے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سردیوں کی شام تیزی سے گہری ہو رہی تھی۔ شامین جب گھر کے پچھلے حصے میں موجود سرونٹ کوارٹر کے پرانے واشنگ ایریا میں پہنچی تو یک بستہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ یہ گھر کا وہ تاریک حصہ تھا جہاں کوئی جلدی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک طرف وہ تنہا ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو رہی تھی اور دوسری طرف گھر کے اگلے حصے کا وسیع و عریض لان شہر کے نامور اور امیر ترین مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں اور دھیمی موسیقی نے پارٹی کے ماحول کو بہت دل فریب بنا دیا تھا۔ بیگم نصرت ایک گروپ سے دوسرے گروپ تک گئیں اور ہر ایک کے سامنے بڑے فخر سے مراد ہمدان کی متوقع آمد کا ذکر کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ پورا شہر جان لے کہ مراد ہمدان جیسا بڑا بزنس مین ان کی پارٹی میں آ رہا ہے۔ وہاں روشنی اور کہے تھے جبکہ یہاں اندھیرا اور سردی تھی۔ تاریک اور خستہ حال واشنگ ایریا کی گیلی زمین پر بیٹھی شامین بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ نومبر کی ٹھنڈی ہوائیں اور اوپر سے ٹھنڈا پانی، اس کے ہاتھ صابن اور برف جیسے پانی سے مکمل سن ہو چکے تھے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لگاتار کپڑے رگڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس قید سے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ سوچنا چاہتی تھی، مگر اسے چاروں طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ اچانک مین گیٹ پر سیاہ گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ گارڈز نے پھرتی سے دروازے کھولے اور شہر کا طاقتور ترین بزنس مین مراد ہمدان گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ ایک انتہائی وسیع اور دراز قد اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی سنجیدگی طاری تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سامنے والے کو بنا کچھ کہے خاموش کرا دیتی تھی۔ وہ وقت کا بے حد پابند اور اصولوں کا پکا انسان تھا جسے یہ بناوٹی محفلیں اور دھوکے باز لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ اس کے مینیجر تیمور نے آگے بڑھ کر راستہ صاف کروایا۔ مراد جیسے ہی حال میں داخل ہوا، بیگم نصرت اسے دیکھتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ ارے مراد بیٹا، کتنی خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر، میں تو سب سے تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ بیگم نصرت نے حد سے زیادہ چاپلوسی کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ مراد کو ان کی اس مصنوعی مسکراہٹ اور میٹھے لہجے سے شدید کوفت ہوئی۔ وہ صرف بیگم نصرت کی ایک کاروباری فائل کا جائزہ لینے کے ارادے سے یہاں آیا تھا تاکہ ایک پرانا حساب چکتا کر سکے، مگر اب اس کا دل وہاں سے فوراً واپسی کا کر رہا تھا۔ اس نے صرف ہلکا سا سر ہلایا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادھر پرانے واشنگ ایریا میں شامین آخری کپڑا نچوڑنے ہی والی تھی
कि अचानक दीवार के साथ लगा पानी का खस्ता हाल पाइप जोरदार आवाज के साथ फट गया। इससे पहले कि शामीन कुछ समझ पाती, पानी की तेज धार से इसे सर से पांव तक मुकम्मल भिगो दिया। यकबस्ता पानी ने इसके जिस्म में कपकपी दौड़ा दी। वो सर्दी से बुरी तरह कांपने लगी। इससे घबरा कर इधर-उधर देखा और खुद को सुखाने के लिए किचन के पिछले दरवाजे की तरफ भागी। अंधेरे और शदीद घबराहट में वो रास्ता भूल गई और सर्वेंट क्वार्टर की राहदारी पार करती हुई सीधा मेहमानों से भरे मेन हॉल के एंड वस्त में आ निकली। गीले और पुराने कपड़ों में मलबूस पानी से टपकती हुई एक लड़की को यूं अचानक हॉल में देखकर पूरी महफिल में एक गहरी खामोशी छा गई। मौसीकी रुक गई और सबकी नजरें इस पर जम गईं। शामीन को अपनी हालत का एहसास हुआ तो एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। पानी इसके बालों से टपक कर फर्श पर गिर रहा था और सर्दी से इसके दांत बज रहे थे। बेगम नुसरत ने जब इसे इस हुलिये में सब मेहमानों के सामने खड़े देखा तो इनके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से दांत पीसती हुई इसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर इस बार शामीन ने नजरें नहीं झुकाईं। इसने खौफज़दा होने या वहां से भागने के बजाय अपना सर उठाया और सीधा बेगम नुसरत की आंखों में देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी बगावत और निडरपन था, जिसने एक लम्हे के लिए बेगम नुसरत के कदम भी रोक दिए। बिल्कुल इसी पर मरात हमदान की गहरी और संजीदा निगाहें भी इस भीगी मगर बाहिम्मत लड़की पर पड़ी, जो लड़की इस झूठी और बनावटी महफिल में सबसे अलग, सबसे सच्ची लग रही थी। हॉल में खड़े लोग आपस में चहमगोइयां करने लगे। सायरा ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी माँ के कान में कुछ कहा। बेगम नुसरत ने अपने गुस्से पर बामुश्किल काबू पाया और मेहमानों की तरफ देखकर एक मसनूई हंसी हंसी। ये दरअसल हमारी एक मुलाजमा है, जरा दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है इसका। आप लोग प्लीज पार्टी एंजॉय करें। बेगम नुसरत ने बात को संभालने की कोशिश की और फिर शामीन के बाजू को सख्ती से पकड़कर इसे पीछे की तरफ धकेला। शामीन का बाजू बेगम नुसरत की मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह दुखने लगा, मगर इसने अपने चेहरे पर कोई तकलीफ जाहिर नहीं की। इसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। मैं मुलाजमा नहीं हूँ बेगम नुसरत, और ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। शामीन की आवाज़ हाल के इस खामोश माहौल में बहुत साफ सुनाई दी। बेगम नुसरत का रंग फक पड़ गया। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि शामीन इतने सारे लोगों के सामने यूं इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देगी। चुप कर जाओ बेशरम लड़की, मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम आज मुझे ही सबके सामने जलील कर रही हो। बेगम नुसरत ने आवाज नीची रखते हुए इसे धमकी दी और दोबारा इस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी। मुराद हमदान, जो अब तक खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था, इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। जो अपनी जगह से उठा और इसके भारी कदमों की आवाज ने हॉल की खामोशी को तोड़ दिया। वो सीधा चलता हुआ बेगम नुसरत और शामीन के दरमियान आकर खड़ा हो गया। बस बेगम नुसरत, हाथ नीचे करें। मुराद की भारी और रौबदार आवाज हाल में गूंजी। बेगम नुसरत ने हैरत और खौफ से मुराद को देखा। इनका उठा हुआ हाथ हवा में ही कांप कर नीचे गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मुराद हमदान जैसा शख्स इस मामूली लड़की की खातिर इनसे इस लहजे में बात क्यों कर रहा है। मुराद ने एक नज़र शामीन पर डाली। वो सर्दी से मुसलसल कांप रही थी, मगर इसकी आंखों की चमक और इसका गुरूर अभी भी वैसा ही था। मुराद ने अपना रुख बेगम नुसरत की तरफ किया। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने या आपके घर के तमाशे देखने नहीं आया था। मुराद ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तैमूर, वो फाइल मुझे दो। तैमूर ने फौरन आगे बढ़कर एक नीले रंग की फाइल मुराद के हाथ में पकड़ाई। मुराद ने वो फाइल बेगम नुसरत के चेहरे के बिल्कुल सामने की। ये वो फाइल है जिसमें आपके इन तमाम घपलों और धोखेदही का सबूत मौजूद है, जो आपने इस लड़की की विरासत को गबन करने के लिए किए हैं। मुराद की बात सुनकर बेगम नुसरत के पैरों तले से जमीन निकल गई। इनका चेहरा पसीने से भीग गया और होंठ कांपने लगे। सायरा और बाकी सब लोग भी हक्का बक्का रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बेगम नुसरत के खिलाफ इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से सामने आ जाएगी। शामीन ने हैरत से मुराद को देखा। वो शख्स जिसे वो जानती तक नहीं थी, वो इसके लिए इतनी बड़ी सच्चाई सबके सामने ले आया था। इसके दिल में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हुई। मेरे साथ स्टडी रूम में चले बेगम नुसरत, अभी और इसी वक्त, वरना ये फाइल पुलिस तक पहुंचाने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। मुराद ने अपना हतमी फैसला सुनाया और पलट कर स्टडी रूम की तरफ चल पड़ा। बेगम नुसरत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सर झुकाए शिकस्त खोर अंदाज में मुराद के पीछे पीछे चल पड़ी। सायरा ने खौफजदा नजरों से अपनी माँ को जाते देखा और फिर शामीन को, जिसकी आंखों में आज पहली बार एक फतह की चमक थी।
हाल में मौजूद तमाम मेहमान अभी सख्ते के आलम में थे। शामीन वहीं खड़ी रही। पानी अब भी इसके कपड़ों से टपक रहा था, मगर इसे अब सर्दी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों की कैद के बाद आज पहली बार इसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। तैमूर ने शामीन के पास आकर एहतराम से सर झुकाया। मिस शामीन, सर ने आपको भी अंदर बुलवाया है। शामीन ने एक गहरी सांस ली और अपने भीगे हुए दुपट्टे को कंधों पर दुरुस्त किया। इसने हाल में मौजूद सब लोगों पर एक सरसरी सी नजर डाली, जिनकी नजरों में अब इसके लिए हमदर्दी और बेगम नुसरत के लिए हकारत थी। वो मजबूत कदमों के साथ स्टडी रूम की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। स्टडी रूम की फिजा इंतहाई बोझल और खामोश थी। मुराद हमदान कुर्सी पर इंतहाई रोब और संजीदगी से बैठा था। इसकी तेज निगाहें सामने खड़ी बेगम नुसरत पर जमी थीं, जिनका चेहरा खौफ और पसीने से भीग चुका था। शामीन खामोशी से एक तरफ आकर खड़ी हो गई। ये ये सब झूठ है मुराद बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। ये कागजात सच्चे नहीं हैं। बेगम नुसरत ने रुहासू और कांपती हुई आवाज में सफाई देने की कोशिश की। आवाज नीचे रखें बेगम नुसरत, मुराद ने सख्ती से इन्हें टोका। पहली बात, मेरा नाम मुराद हमदान है। मुझे बेटा कहने का हक मैंने आपको नहीं दिया। और दूसरी बात, मैं कोई भी काम कच्चा नहीं करता। आपने शामीन के वालिद के मरने के बाद इसकी सारी विरासत अपने नाम करवाई। मेरे पास जो सबूत हैं वो आपको सीधा सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। मैंने इसे पाला है, इस पर इतना खर्च किया है, इसे छत दी है। बेगम नुसरत ने अपने दिफा में चिल्लाकर कहा, इसे छत दी है या इससे नौकरानियों वाला काम लिया है? कि अभी बाहर खड़े सारे शहर ने अपनी आंखों से देख लिया है। मुराद कुर्सी से उठा और मेज पर हाथ रखते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ाए। अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो पुलिस के आने का इंतज़ार करें और जेल की हवा खाएँ, या चुपचाप मेरी बात मान लें। बेगम नुसरत ने बेबसी से इर्द-गिर्द देखा। इनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। तुम क्या चाहते हो? मुराद ने नज़र घुमाकर शामीन को देखा। पानी अभी तक इनके पुराने कपड़ों से टपक रहा था, मगर इसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। वो बिल्कुल पुरसुकून खड़ी ये सब सुन रही थी। मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त शामीन को इसके हाल पर छोड़ दें और इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दें। मुराद ने टोक टोक अल्फाज में कहा, फिर इसके चंद कदम शामीन की तरफ बढ़ाए। शामीन ने हैरत से इस अजनबी को अपने करीब आते देखा। मैं आपको इस कैद से निकाल सकता हूँ शामीन। मुराद का लहजा अब बेगम नुसरत की निस्बत बहुत नर्म था। यह औरत आपको कभी सुकून से जीने नहीं देगी और आपका बचा खुचा हक भी हथिया लेगी। मेरे पास एक रास्ता है जिससे आपको कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। शामीन की उलझन में इज़ाफ़ा हो गया। कौन सा रास्ता? आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? इसकी आवाज़ सर्दी से हल्की-सी काँप रही थी। निकाह। मुराद ने बिना किसी तहमीद के सीधा जवाब दिया। स्टडी रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बेगम नुसरत ने फटी-फटी आँखों से मुराद को देखा। शामीन के कदम एक पल के लिए डगमगाए। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इसे अचानक इस मोड़ पर ला खड़ा करेगी। आप आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं या मुझसे हमदर्द? मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। शामीन ने सर उठाकर सख्ती से कहा, मैं हमदर्दी नहीं करता, मैं सिर्फ मसले का हल निकालता हूँ। मुराद ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, ये निकाह इस वक्त आपकी हिफाजत के लिए सबसे बड़ी ढाल होगा। निकाहनामे में आपके हुकूक और आपकी मर्जी पूरी तरह शामिल होगी। मैं आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। आप जब चाहेंगी इस रिश्ते से आज़ाद हो सकेंगी, मगर आज इस घर से इज्जत के साथ निकलने का और कोई तरीका नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। शामीन ने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की। इसने बेगम नुसरत की तरफ देखा। इनकी आंखों में अब भी वही ज़हर और नफ़रत थी जो वो पिछले कई सालों से देखती आ रही थी। अगर वो आज यहाँ रुक गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर इसने मुराद की आंखों में देखा। वहाँ कोई फरेब नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव और सच्चाई थी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। शामीन ने बिना पलके झपकाए जवाब दिया। बेगम नुसरत सदमे से वहीं कुर्सी पर गिर गईं। मुराद के चेहरे पर एक हल्का सा इत्मीनान उभरा। इसने फौरन तैमूर को इशारा किया। कुछ ही देर में काजी साहब को अंदर बुलवाया गया। सब कुछ इतनी जल्दी और खामोशी से हुआ कि शामीन को मजीद कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसने कांपते हाथों से निकाहनामे पर अपने दस्तखत कर दिए। निकाह के फौरन बाद मुराद और इसने अपने हाथ शामीन की तरफ बढ़ाए। चलें। शामीन ने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद
मुराद का मजबूत हाथ थाम लिया। जैसे ही वो दोनों स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर मेन हॉल में आए, वहां मौजूद सायरा और बाकी मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की कुछ देर पहले तक एक मजलूम मुलाजमा लग रही थी, वो अब शहर के सबसे ताकतवर इंसान की बीवी बनकर इसका हाथ थामे खड़ी है। मुराद बावकर अंदाज में शामीन को अपने साथ लिए मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। इसने किसी एक शख्स की तरफ भी मुड़कर नहीं देखा। शामीन भी बगैर किसी खौफ के सर उठाए इसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। बेगम नुसरत की मुकम्मल खामोशी पूरे हाल की फिजा को मजीद पुरस्कार बना रही थी। बाहर खड़ी सीहा चमकदार गाड़ी के पास पहुंचकर ड्राइवर ने फुर्ती से पिछला दरवाजा खोला। शामीन अंदर बैठ गई। मुराद भी दूसरी तरफ से आकर इसके साथ बैठ गया, मगर इसने शामीन से एक इंतहाई मोहतात फासला बरकरार रखा। गाड़ी खामोशी से स्टार्ट हुई और इस जालिम घर की ऊंची दीवारों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ती हुई एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। एसी की ठंडक से शामीन के दांत बजने लगे थे। इसका सारा जिस्म सर्दी, भूख और दिन भर की थकावट से टूट रहा था। अचानक होने वाले इस फैसले ने इसे ज़हनी तौर पर निढाल कर दिया था। वो सीट के एक कोने में सिमट कर बैठ गई और खिड़की के शीशे से बाहर अंधेरे में भागते हुए दरख्तों को देखने लगी। इसका ज़हन अब मुस्तकबिल के अंदेशों में उलझ रहा था। मुराद ने एक सरसरी सी नज़र इसकी कांपती हुई हालत पर डाली। वो जानता था कि शामीन इस वक्त किस कदर कमज़ोर महसूस कर रही है। इसने बिना कोई लफ्ज़ कहे अपना कीमती और गर्म कोट उतारा और इसे शामीन के कंधों पर डाल दिया। शामीन ने चौंक कर अपना रुख मोड़ा और इस सख्त चेहरे वाले शख्स को देखा। इसकी आंखों में शामीन के लिए कोई तर्स नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह और गहरा एहतराम नुमाया था। शुक्रिया। शामीन के होठों से बेसाख्ता एक मध्यम सी आवाज़ निकली। मुराद ने हल्का सा इस्बात में सर हिलाया और दोबारा सामने देखने लगा। इसने कोई बात करके शामीन को मज़ीद उलझन में नहीं डाला। इस छोटे से अमल ने शामीन के दिल में एक अजीब सा सुकून उतार दिया। कोट की गरमाइश ने इसके काँपते और यकबस्ता वजूद को थोड़ी-सी राहत बख्शी। इसने कोट को अपने गिर्द थोड़ा-सा और लपेट लिया और अपनी आँखें मूंद लीं। इसे अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि इसने मुराद हमदान पर भरोसा करके कोई गलत फैसला नहीं किया। वो अब तक जिन तूफ़ानों से लड़ रही थी, मुराद की खामोशी में इसे एक महफूज़ पनाहगाह का एहसास मिल रहा था। गाड़ी शहर की भीड़ और शोर से बहुत दूर एक पुरसुकून और आलीशान फार्म हाउस के बड़े से पोर्च में आकर रुकी। चारों तरफ खामोशी और रात की गहरी तारीकी थी। मुराद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। इसने दूसरी तरफ आकर शामीन की तरफ का दरवाज़ा भी खोला। हम पहुँच गए हैं, आप बाहर आ जाएँ, मुराद ने नरमी से कहा। शामीन ने कोट को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा और आहिस्ता से बाहर कदम रखा। सामने एक खूबसूरत और वसी घर था। पोर्च की पीली रोशनी में वो घर किसी पुरसुकून पनाहगाह जैसा लग रहा था। मुराद आगे बढ़ा और दरवाजे की घंटी बजाई। चलना मुभात दरवाजा खुला। सामने एक उम्र रसीदा शफीक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। ये सुगरा बीवी थी। वो पिछले कई सालों से इस फार्म हाउस की देखभाल कर रही थी और इनका चेहरा किसी मेहरबान माँ जैसा था। मुराद बेटा, तुम इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? सुगरा बीवी ने हैरानी से पूछा, मगर फिर इनकी नज़र मुराद के पीछे खड़ी शामीन पर पड़ी। वो गीले कपड़ों में कांप रही थी और इसके कंधे पर मुराद का घोट था। ये बच्ची कौन है बेटा? सुगरा बीबी ने परेशानी से पूछा। सुगरा बीबी, इनका नाम शामीन है। आज से ये इस घर की मालकिन है। मुराद ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। सुगरा बेगम। सुगरा बीबी के चेहरे पर शदीद हैरत उभरी, मगर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मुराद का फैसला इस घर में उर्फ़ आखिर होता था। इनके कपड़े गीले हैं, आप फौरन मेहमानों वाले कमरे में गर्म पानी का बंदोबस्त करें और इनके पहनने के लिए कुछ खुश्क कपड़े निकाल दें। ये सर्दी से काँप रही हैं। मुराद ने रिवायती मगर मोहतात अंदाज में हिदायत दी। जी जी बेटा, मैं अभी सब करती हूँ। आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। सुगरा बीवी ने जल्दी से रास्ता छोड़ते हुए कहा। मुराद शामीन को लेकर एक बड़े और साफ सुथरे कमरे में आया। कमरे में हल्की सी गरमाइश थी जिसने शामीन को बहुत सुकून दिया। ये कमरा आपका है, वॉशरूम सामने है, आप गर्म पानी से नहा लें। सुगरा बीबी कपड़े लेकर आती होंगी, मुराद ने कहा और पलटने लगा। शामीन ने दरवाजा बंद होने से पहले इसे रोका। मुराद साहब। मुराद के कदम रुक गए और इसने पीछे मुड़ कर देखा। मैं जानती हूँ आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मगर फिर भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना बचती। शामीन ने सच्चे दिल से कहा, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। आपको मुझसे डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप महफूज हैं। मुराद ने तसल्ली दी और बाहर जाने लगा।
एक और बात, शामीन की आवाज़ में अब थोड़ी-सी हिचकिचाहट थी। जी, कोई और चीज़ चाहिए आपको? मुराद ने पूछा। वो वो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। शामीन ने मासूमियत से कहा। इसकी इस बेसाख्ता और गैर मुतवक्का बात पर मुराद के चेहरे पर मौजूद संजीदगी की लकीरें अचानक गायब हो गईं। इसके होठों पर एक इंतहाई हल्की-सी मुस्कुराहट उभरी। "सुगरा बीबी, खाने का फ़ौरन इंतज़ाम करें। शामीन के लिए कुछ गरम और अच्छा-सा बना कर लाएँ।" मुराद ने कदरे ऊँची आवाज़ में बाहर की तरफ हिदायत दी और फिर शामीन से बोला, "आप फ्रेश हो जाएँ, खाना लग जाएगा।" शामीन ने इस बात पे सर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। गर्म पानी और साफ खुश्क कपड़ों ने इसकी सारी थकावट दूर कर दी। जब वो बाल खुश करती हुई बाहर आई तो सुगरा बीबी एक बड़ी सी ट्रॉली में मुख्तलिफ किस्म के खाने लेकर कमरे में दाखिल हुई। "बेटी, ये लो, खाना खा लो। मुराद कह रहा था तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया।" सुगरा बीबी ने प्यार से कहा। "बहुत बहुत शुक्रिया सुगरा आंटी, मुझसे तो वाक़ई अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी।" शामीन की आँखों में चमक आ गई। वो किसी भी तकलीफ़ के बगैर सोफ़े पर बैठी और जल्दी-जल्दी खाना प्लेट में निकालने लगी। इसी दौरान मुराद कमरे के दरवाज़े पर आया। वो ये देखने आया था कि शामीन को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। "खाना कैसा है? कुछ और बनवाऊँ आपके लिए?" मुराद ने दरवाज़े से ही पूछा। "खाना बहुत मज़े का है। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाएँ और मेरे साथ खाएँ।" शामीन ने बेतकल्लुफ़ी से इसे दावत दी। मुराद थोड़ा हैरान सा हुआ। वो आमतौर पर अकेला और खामोशी से खाना खाने का आदी था। "नहीं शुक्रिया, मैं खा चुका हूँ। आप आराम से खाएँ।" मुराद ने इनकार किया। "ऐसे कैसे? चलें, थोड़ा-सा चख लें। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊँगी? ज़ाया हो जाएगा। आ जाएँ ना।" शामीन ने ज़ोर दे के कहा। इसकी सादगी और ज़िंदगी की तरफ लौटती इस चमक को देखकर मुराद महफ़ूज़ हुआ। वो इनकार नहीं कर सका और आहिस्ता से चलता हुआ सामने वाले सोफ़े पर आकर बैठ गया। शामीन ने फ़ौरन एक प्लेट में खाना निकाल कर इसके आगे रख दिया। "ये लें और बताएँ कि कैसा बना है?" शामीन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुराद ने खामोशी से निवाला लिया। शामीन के बोलने का अंदाज़ और इसकी बेतकल्लुफ़ी मुराद के लिए बहुत नई थी। वो हमेशा खामोश और संजीदा लोगों में रहा था, मगर शामीन बिल्कुल अलग थी। इसके अंदर एक अजीब-सी ज़िंदगी थी जो इतने ज़ुल्म सहने के बावजूद ख़त्म नहीं हुई थी। खाना खाने के दौरान शामीन ने छोटी-छोटी बातें शुरू कर दी। "ये घर बहुत पुरसुकून है, शहर से काफ़ी दूर है ना?" शामीन ने पूछा। "जी, मुझे शोर ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी थी।" मुराद ने मुख्तसर जवाब दिया। "मुझे तो आज पता चला कि सुकून कैसा होता है। बेगम नुसरत के घर में तो सांस लेना भी जुर्म लगता था।" शामीन की आवाज़ थोड़ी-सी उदास हुई, मगर इसने फ़ौरन खुद को सँभाल लिया। "ख़ैर, अब वो सब माज़ी है। मैं अब एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगी।" मुराद इसके इस हौसले पर दिल ही दिल में बहुत मुतासिर हुआ। ये इन दोनों के दरमियान एक गैर रस्मी और दोस्ताना ताल्लुक की पहली सीढ़ी थी। पेट भरने के बाद शामीन को शदीद थकावट ने आन घेरा। वो इसी कमरे में बेड पर लेटी और इसे फ़ौरन गहरी नींद आ गई। इसे बरसों बाद इतनी पुरसुकून और बेखौफ नींद आई थी। मुराद रात गए अपना कुछ दफ्तरी काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि इसके कदम शामीन के कमरे के बाहर रुक गए। दरवाज़ा हल्का सा खुला, इसने अंदर नज़र डाली। शामीन गहरी नींद सो रही थी। इसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। मुराद कुछ देर वहीं खड़ा इसे देखता रहा। इसने सोचा कि कैसे ये लड़की इतने दुख सहने के बाद भी मुस्कुरा सकती है। इस रात फार्म हाउस की खामोशी में एक अजीब सा सुकून और हरारत का एहसास हुआ था। ये लड़की वाक़ई बहुत अलग है, मुराद ने खुद से आहिस्ता से कहा। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि ये पुरएतमाद और बाहिम्मत लड़की इसकी तन्हा और बेरंग ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती है। घर की ठंडी फ़िज़ा में आज पहली बार इसे किसी के होने का एक खूबसूरत और गर्म एहसास मिल रहा था। वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह फार्म हाउस का माहौल मामूल से ज़्यादा खामोश था। मुराद अभी कमरे से ही निकला था कि सुगरा बीवी परेशानी के आलम में इसके पास आई। "मुराद बेटा, जल्दी से मेहमानों वाले कमरे में आओ। शामीन बेटी की तबीयत बहुत खराब है।" सुगरा बीबी की आवाज़ में घबराहट थी। मुराद के कदम तेजी से शामीन के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खोलते ही इसने देखा कि शामीन बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। वह गुनूदगी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। "नहीं बेगम नुसरत, प्लीज़ मुझे मत मारें। सर्दी लग रही है। मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। प्लीज़।" शामीन की कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी। ये सुनकर मुराद के चेहरे की रगें तन गईं। इसने जल्दी से आगे बढ़कर शामीन के माथे पर हाथ रखा। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी।
पिछले दिन की सर्दी, बर्फ जैसा पानी और जहनी दबाव ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया था। सुगरा बीबी, आप फौरन ठंडे पानी की पट्टियां लाएं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुराद ने फौरन फोन निकालते हुए कहा, आज तुम्हारी बहुत अहम मीटिंग थी बेटा, तुम जाओ, मैं इस बच्ची को देख लेती हूँ। सुगरा बीबी ने तसल्ली दी, कोई मीटिंग इस वक्त इससे ज्यादा अहम नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुराद ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया और अपने मैनेजर को फोन करके दिन भर के तमाम कान मसरूफ कर दिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और इसने शामीन का चेकअप करके दवाइयाँ दी। मुराद सारा दिन वहीं कुर्सी खींचकर इसके सरहाने बैठा रहा, तो अपने हाथों से ठंडे पानी की पट्टियाँ इसके माथे पर रखता रहा ताकि बुखार की शिद्दत कम हो सके। शामीन की बेचैनी कम होने लगी और वह गहरी नींद में चली गई। शाम के साए गहरे होने लगे थे जब शामीन ने आहिस्ता से आंखें खोली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। इसने सर घुमा कर देखा तो मुराद को अपने करीब बैठे पाया। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, मगर इसकी पूरी तवज्जो शामीन पर थी। शामीन ने खुद को उठाने की कोशिश की, मगर जिस्म में शदीद कमजोरी के बायस वो 2 बार तकिए पर गिर गई। अगर अरे आराम से लेटी रहो, क्या जरूरत है इतनी जल्दी उठने की? मुराद ने लैपटॉप साइड पर रखते हुए कदरे सख्ती से कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? शामीन ने कमजोर आवाज में पूछा। आपको बहुत तेज बुखार हुआ था, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती आप? अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करती तो इस ठंडे पानी में इतनी देर तक ना रहती। मुराद ने मसनूई गुस्से से डांटा। शामीन इसकी डांट सुनकर मुस्कुरा दी। वहाँ मेरी मर्जी थोड़ी चलती थी, वैसे आप गुस्से में भी अच्छे लगते हैं। मुराद इसकी बात पर हैरान रह गया। वो इसे डांट रहा था और वो आगे से मुस्कुरा रही थी। सुगरा बीबी को आवाज देकर सूप मंगवाया। ये लें, इसे चुपचाप पी लें। मुराद ने सूप का गर्म प्याला इसकी तरफ बढ़ाया। शामीन के हाथ कमजोरी से कांप रहे थे। इसने बामुश्किल प्याला पकड़ा, मगर वो छलकने लगा। मुराद ने फौरन प्याला इसके हाथ से ले लिया। रहने दें, आपसे नहीं होगा। मुराद ने प्याला अपने हाथ में रखा और चम्मच से सूप इसके होठों के करीब किया। मुंह खोले। शामीन की आंखों में नमी तैरने लगी। इसने जिंदगी में कभी इतनी फिक्र और मोहब्बत नहीं देखी थी। वो खामोशी से सूप पीने लगी। आप इतने बुरे नहीं हैं जितना बनने की कोशिश करते हैं। शामीन ने सूप खत्म करने के बाद नरमी से कहा, मैं बुरा ही हूँ, आप अभी मुझे जानती नहीं हैं, अब आप खामोशी से सो जाएं। मुराद ने प्याला साइड पर रखा और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। शामीन इसके साथ खौल के पीछे छुपी हुई गहरी फिक्र को महसूस करके दिल ही दिल में खुश हो रही थी। चंद दिन मजीद गुजर गए। शामीन की तबीयत अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी थी। इसकी सेहत के साथ साथ फार्म हाउस के खामोश माहौल में भी एक नई रौनक आ गई थी। वो सारा दिन घर में घूमती फिरती और मुलाजमीन से बातें करती रहती। एक शाम मुराद लाउंज में बैठा एक अहम फाइल पढ़ रहा था और पूरी तरह से अपने काम में मगन था। शामीन दबे कदमों इसके पास आई और जानबूझकर मेज पर रखी हुई एक किताब को धक्का दे दिया। किताब सीधा मुराद की फाइल पर गिरी और फाइल के कुछ कागजात फर्श पर बिखर गए। मुराद ने एक लंबी सांस ली। इसने गुस्से से कुछ कहने के बजाय खामोशी से झुककर बिखरे हुए कागजात को समेटना शुरू कर दिया। ओह, ये तो मुझसे गलती से गिर गई। मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। शामीन सोफे की कुर्सी से टेक लगाते हुए हंसी। मुराद ने कागजात दोबारा तरतीब दिए और इसे देखा। आपको तंग करने के अलावा कोई और काम नहीं है? काम तो बहुत है, मगर आपको तंग करने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं। शामीन ने बेसाख्ता जवाब दिया। वैसे एक बात कहूँ, आप खामखा गुस्से का नकाब पहने रखते हैं। अंदर से आप बहुत नरम हैं, कम अज़ कम मेरे लिए तो हैं। मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसके होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। इसने फाइल बंद की और शामीन की तरफ पूरी तवज्जो से देखा। आपकी इस ज़बान का कोई इलाज नहीं है शामीन। आपको ज़रा भी डर नहीं लगता मुझसे। लोग मेरे नाम से काँपते हैं, मुराद ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा। डर तो मुझे बेगम नुसरत से भी नहीं लगता था। आप तो फिर भी मेरे मुहाफ़िज़ हैं और जिससे इंसान खुद को महफूज़ समझे, इससे डरा नहीं जाता। शामीन ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। मुराद को इसने जवाब से लाजवाब कर दिया। इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत, मजबूत और खामोश सा ताल्लुक बनना शुरू हो गया था। मुराद इसकी बचकाना हरकतों पर झुंझलाता ज़रूर था, मगर इसकी आरा को अपने फैसलों में अहमियत देने लगा था। सुगरा बीवी कह रही थी कि आपको पौधों का बहुत शौक है। मैंने माली से कहकर लॉन में कुछ नए फूल लगवा दिए हैं, क्या आप देखना चाहेंगी? मुराद ने मौजू बदलते हुए पूछा। बिल्कुल चलें, मुझे अभी दिखाएं। शामीन खुशी से खड़ी हो गई।
वो दोनों बाहर लॉन में आ गए। ठंडी हवा चल रही थी, मगर माहौल में एक अजीब-सा सुकून था। शामीन रंग-बिरंगे फूलों को देखकर बहुत खुश हो रही थी और मुराद खामोशी से इसकी खुशी को महसूस कर रहा था। मुराद, आपको नहीं लगता कि ये घर बहुत बड़ा और खाली है? आप यहाँ अकेले कैसे रह लेते थे? शामीन ने एक गुलाब के फूल को छूते हुए पूछा। पहले मुझे तन्हाई पसंद थी, खामोशी में सुकून मिलता था। मैंने छोटी उम्र में ही अपने वालिदैन को खो दिया था। इसके बाद सिर्फ काम और जिम्मेदारियां रह गईं। मैंने कभी जीना नहीं सीखा, सिर्फ वक्त गुजारना सीखा है। मुराद की आवाज़ में एक गहरा दुख था। तो अब सीख लें, ज़िंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। शामीन ने मुड़कर इसकी आंखों में देखा। और अब आप अकेले नहीं हैं। जी, अब मुझे भी लगता है कि घर में किसी के बोलने की आवाज़ होनी चाहिए। आपने इस घर की खामोशी को ख़त्म कर दिया है। और सच्ची बात ये है कि मुझे अब ये शोर बुरा नहीं लगता। मुराद ने सच्चे दिल से एतराफ़ किया। शामीन मुस्कुरा दी। वो अब मुकम्मल पुरएतमाद हो चुकी थी और मुराद के साथ बराबरी की सतह पर बात करती थी। वो जानती थी कि मुराद इसकी बातों को अहमियत देता है। घर के मुलाज़मीन, ख़ास तौर पर सुगरा बीवी, अपने सख्त मालिक में ये वाज़ेह और मुस्बत तब्दीली देखकर बहुत खुश थीं। फ़ार्म हाउस के सर्द और बेजान माहौल में अब बाहमी एहतराम और मोहब फ़िक्र और मोहब्बत की नर्म हवाएँ चलने लगी थीं। दोनों को एक-दूसरे की आदत हो गई थी और ये आदत इनके दिलों में एक नए रिश्ते की मज़बूत बुनियाद रख रही थी। लॉन में होने वाली इस गुफ्तगू के बाद वक़्त ने जैसे पल लगा लिए और सुकून भरे कई दिन पलक झपकते ही गुज़र गए। आज ऐसे ही एक पुरसुकून दोपहर थी। फ़ार्म हाउस में गहरी खामोशी छाई हुई थी और शामीन लाउंज में सोफ़े पर बैठी एक किताब पढ़ने में मगन थी जब सुगरा बीवी एक बड़ा-सा लिफ़ाफ़ा हाथ में लिए अंदर दाख़िल हुईं। शामीन बेटी, ये तुम्हारे नाम का एक पार्सल आया है। बाहर गेट पर कोई आदमी देकर गया है। कह रहा था कि बेगम नुसरत ने भेजा है। सुगरा बीबी ने लिफाफा शामीन की तरफ बढ़ाया। बेगम नुसरत का नाम सुनते ही शामीन के बातें पर सिलवटें उभर आईं। इसने किताब बंद करके मेज पर रखी और लिफाफा पकड़ लिया। बेगम नुसरत ने मुझे क्या भेजना है, इनका मुझसे अब क्या वास्ता? शामीन ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और लिफाफा खोला। इसके अंदर कुछ कानूनी कागजात थे और साथ ही एक हाथ से लिखा हुआ खत। शामीन ने धड़कते दिल के साथ खत पढ़ना शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है शामीन, मुराद हमदान जैसा अमीर और ताकतवर इंसान तुम जैसी यतीम और कंगाल लड़की से निकाह क्यों करेगा? वो कोई फरिश्ता नहीं है जो तुम पर तरस खाकर तुम्हें मेरे घर से निकाल लाया। ये कागजात ज़रा गौर से देखो। इसने ये निकाह सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे बाप की वो ज़मीन हथियाने के लिए किया है जो मैंने अपने नाम करवा ली थी। मुराद ने मुझसे सौदा किया है, तुम इसके लिए सिर्फ़ एक मोहरा हो। जिस दिन ये ज़मीन पक्की तौर पर इसके नाम हो गई, वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। खत पढ़कर शामीन के हाथों में थोड़ी देर के लिए कँपकँपाहट तारी हो गई। इसने जल्दी से कागज़ात पर नज़र दौड़ाई। वो ज़मीन की मुंतक़ली के कागज़ात थे जिन पर मुराद के दस्तखत मौजूद थे और ये दिखाया गया था कि ज़मीन शामीन के नाम से हटाकर मुराद हमदान के नाम की जा रही है। एक लम्हे के लिए शामीन को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे बहुत ऊँचाई से नीचे धक्का दे दिया हो। क्या वाक़ई मुराद ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था? क्या मुराद की वो नरमी, वो फ़िक्र, बुखार में रात भर इसके सराहने बैठना, क्या वो सब एक ड्रामा था? लेकिन अगले ही लम्हे शामीन ने गहरी साँस ली। इसने अपने आँसुओं को आँखों में ही रोक लिया। इसने याद किया कि जब वो पहली रात सर्दी से काँप रही थी, तो मुराद ने किस एहतराम से अपना कोट इसके कंधों पर डाला था। मुराद की आँखों में कभी कोई लालच या फ़रेब नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो पैसों के लिए किसी बेसहारा लड़की के जज़्बात से खेले। नहीं, बेगम नुसरत मुझसे ये सुकून छीनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं रोकर ये घर छोड़ दूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं करूँगी। मैं सीधा मुराद से बात करूँगी। शामीन ने मज़बूत लहज़े में खुद से कहा। इसने कागज़ात वापस लिफ़ाफ़े में डाले और मुराद की वापसी का इंतज़ार करने लगी। शाम के वक़्त मुराद गाड़ी से उतरा और सीधा लाउंज में आया। वो आज मामूल से ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम मुराद, शामीन ने सोफ़े से उठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम शामीन, आज आपका दिन कैसा गुज़रा? मुराद ने अपनी टाई की ग्राह ढीली करते हुए नरमी से पूछा। मेरा दिन कैसा गुज़रा ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले आप मुझे ये बताएँ कि ये क्या है? शामीन ने वो पीला लिफ़ाफ़ा और इसके अंदर मौजूद कागज़ात मेज़ पर मुराद के बिल्कुल सामने रख दिए। मुराद ने हैरानी से इन कागज़ात को देखा। इसने खत पढ़ा और फिर जाली कागज़ात पर नज़र दौड़ाई। शामीन खामोशी से इसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रही थी।
मुराद के चेहरे पर पहले गुस्सा आया और फिर अचानक एक हल्की सी मुस्कुराहट हुई। इसने कागजात मेज पर वापस रखे तो बेगम नुसरत ने अपनी आखिरी चाल चल दी। मुराद ने पुरसुकून अंदाज में कहा और फिर शामीन की आंखों में देखा। और आपने इन कागजात को पढ़ने के बाद क्या फैसला किया? क्या आपने अपना सामान पैक कर लिया है मुझे छोड़कर जाने के लिए? अगर मुझे आपको छोड़कर जाना होता तो मैं आपके आने का इंतजार ना करती मुराद। शामीन ने सीधा जवाब दिया, मैंने इन कागजात पर यकीन नहीं किया। अगर यकीन करती तो कमरे में बैठकर रो रही होती। मैं आपके सामने खड़ी हूँ और सीधा सवाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी ज़बान से सच सुनना है। मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते। क्या आपने वाक़ई इस ज़मीन के लिए मुझसे निकाह किया था? मुराद को शामीन के इस पुरएतमाद अंदाज़ और इसकी बातों पर बेहद फ़क्र महसूस हुआ। मुझे आप पर फ़क्र है शामीन। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, इसने आज मेरा दिल जीत लिया। मुराद ने आगे बढ़कर शामीन के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इसकी आवाज़ में एक अजीब-सी नरमी और सच्चाई थी। ये कागज़ात बिल्कुल जाली हैं। बेगम नुसरत चाहती थी कि आप मुझसे बदचैन होकर दोबारा सड़क पर आ जाएँ, ताकि वो आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकें। मुराद ने अपना ब्रीफ़केस खोला और इसमें से एक फ़ाइल निकाली। ये देखें शामीन, ये असल कागज़ात हैं। बेगम नुसरत ने जो ज़मीन अपने नाम करवाई थी, मैंने अदालत के ज़रिए से मसनूख़ करवा दिया है और ये ज़मीन मैंने अपने नाम नहीं करवाई, बल्कि कानूनी तौर पर आपके नाम पर मुकम्मल महफ़ूज़ कर दी है। अब दुनिया की कोई ताकत आपका ये हक़ आपसे नहीं छीन सकती। आप इस ज़मीन की वाहिद मालकिन हैं। मुराद ने असल कागज़ात शामीन के हाथ में थमा दिए। शामीन ने इन कागज़ात को देखा जहाँ साफ लफ्ज़ों में इसका नाम लिखा था। इसकी आँखों में तशक्कुर और खुशी के आँसू छलक पड़े। मुराद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? मैं तो आपके लिए एक अजनबी लड़की थी। शामीन की आवाज़ खुशी के आँसुओं की वजह से भारी हो रही थी। मुराद ने बहुत नरमी से इसके हाथ से कागज़ात लिए और मेज़ पर रख दिए। इसने पहली बार शामीन की आँखों में इतनी गहरी और वाज़ेह मोहब्बत से देखा। शुरू में वाक़ई ये सिर्फ़ आपको बचाने और बेगम नुसरत के ज़ुल्म को ख़त्म करने का इरादा था। मैंने सोचा था कि मैं आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दूँगा और फिर आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ार सकेंगी। लेकिन मुराद कुछ लम्हों के लिए रुका, लेकिन जब मैंने आपको इस रात गीले कपड़ों में सब मेहमानों के सामने सर उठाकर खड़े देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि आप बहुत ख़ास हैं। आपने इतने दुःख सहे, मगर आपके अंदर की अच्छाई और आपकी हिम्मत ख़त्म नहीं हुई। शामीन खामोशी से मुराद के अल्फाज़ सुन रही थी। इसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है शामीन। मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। मुझे लगता था कि मैं तन्हा ही ठीक हूँ, मगर आपने इस घर में आकर मुझे सिखाया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। आपकी छोटी-छोटी बातें, आपका मुझसे बेतकल्लुफ़ होना, मेरे गुस्से से ना डरना, इन सब चीज़ों ने मेरे अंदर के इस इंसान को जगा दिया जिसे मैं कब का मार चुका था। मुराद ने शामीन का हाथ हल्के से दबाया। मैं आपको सिर्फ बचाना नहीं चाहता शामीन, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। और मेरा ये रिश्ता किसी हमदर्दी या एहसास पर खड़ा नहीं है, ये रिश्ता बराबरी और इज़्ज़त पर कायम है। मैं चाहता हूँ कि आप इस घर की और मेरी ज़िंदगी की मालकिन बनकर रहें। मुराद ने अपने दिल की हर बात आज शामीन के सामने रख दी थी। शामीन की आंखों से आंसू टूटकर इसके गालों पर गिरे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, बेपनाह खुशी के थे। इसने जिंदगी में कभी इतने सच्चे और खूबसूरत अल्फाज नहीं सुने थे। इसने मुराद के हाथों को मजबूती से थाम लिया। मैंने भी इस घर में आकर ही सुकून की सांस ली है मुराद। आप बाहर से जितने सख्त नजर आते हैं, अंदर से इतने ही नर्म हैं। आपने मुझे सिर्फ एक छत नहीं दी, आपने मुझे जीने का मकसद दिया है। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत हो गई है। आप मेरी वो पनाहगाह हैं जहाँ मुझे कभी किसी तूफ़ान से डर नहीं लगता। मुझे ये रिश्ता दिल से कबूल है। शामीन ने मुस्कुराते हुए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। इन दोनों ने एक-दूसरे की आँखों में देखा। वो तमाम फ़ैसले, वो तमाम ख़ामोशियाँ जो इनके दरमियान थीं, आज हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थीं। इन्होंने इस नए और खूबसूरत रिश्ते को सच्चे दिल से अपना लिया था। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर तुलु हुआ। बेगम नुसरत को जब ये यकीन हो गया कि इनका भेजा हुआ पार्सल काम कर गया है, तो वो मज़ीद ब्लैकमेल करने के इरादे से सीधा फार्म हाउस पहुँच गईं। वो समझ रही थी कि शामीन अब तक रो-धो कर घर से निकल चुकी होगी। इसने मेन गेट पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया। मुराद और शामीन दोनों बाहर आए। बेगम नुसरत इन्हें
एक साथ खड़े देखकर हैरान रह गईं। तुम तुम अभी तक यहाँ हो? तुमने वो कागज़ात नहीं देखे शामीन? बेगम नुसरत ने गुस्से और हैरत से चिल्लाई। शामीन 2 कदम आगे बढ़ी। आज इसकी आँखों में बेगम नुसरत के लिए कोई खौफ नहीं था। मैंने वो कागज़ात देख लिए हैं बेगम नुसरत, और मुझे असल सच्चाई भी पता चल गई है। आपका खेल अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। आप मुझसे मेरा हक और मेरी खुशियाँ छीनने आई थीं, मगर आज आपके पास कुछ नहीं बचा। शामीन ने इंतहाई पुरसुकून और मज़बूत लहज़े में कहा, तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है। मैं अभी बताती हूँ तुम दोनों को। मैं पुलिस को बुलाऊँगी। बेगम नुसरत ने धमकी दी। पुलिस को आप नहीं बुलाएँगी, मैंने बुला लिया है, मुराद ने सर्द लहज़े में कहा, और इसी लम्हे पुलिस की 2 गाड़ियाँ फार्म हाउस के गेट पर आकर रुकीं। इंस्पेक्टर गाड़ी से बाहर निकला। मुराद ने आगे बढ़कर असल कागज़ात और फ्रॉड के तमाम सबूत इंस्पेक्टर के हवाले कर दिए। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत धोखे-धड़ी, जायदाद पर गैरकानूनी कब्ज़े और इस लड़की पर मुसलसल ज़ुल्म के जुर्म में मतलूब है। ये रहे सारे सबूत। इन्हें ले जाएँ। मुराद ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा। बेगम नुसरत का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। इसने शामीन की तरफ देखा। शामिनी इन्हें रोको। मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें पाला, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। बेगम नुसरत अब मिन्नतों पर उतर आई थी। आपने मुझे पाला नहीं, मुझ पर ज़ुल्म किया है। आपने मुझे इंसान नहीं समझा, और आज मैं अपने हर दुःख की गवाही खुद दूँगी। मेरा माज़ी का खौफ अब ख़त्म हो चुका है। ले जाएँ इन्हें इंस्पेक्टर साहब। शामीन ने अपना फ़ैसला सुना दिया और मुड़कर मुराद के पास आ खड़ी हुई। पुलिस ने बेगम नुसरत को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बिठा कर ले गए। वो जुल्म और तकब्बुर का बाब आज हमेशा के लिए बंद हो गया था। शामीन ने एक गहरा सांस लिया और मुस्कुराकर मुराद की तरफ देखा। कुछ दिनों बाद दोपहर का वक्त था। धूप में एक नरम सी हरारत थी और लॉन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। परिंदों की चहचहाट माहौल को मजीद खूबसूरत बना रही थी। शामीन और मुराद एक छोटे से मेज के आमने सामने बैठे थे। सुगरा बीवी अभी चाय की ट्रे रख कर गई थी। मुराद चाय का कप हाथ में पकड़े बहुत सुकून से अखबार पढ़ रहा था। शामीन मुस्कुराती हुई नजरों से इसे देख रही थी। मुराद, आपको अखबार पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप अभी किसी नौकरी से निकलने वाले हों। आप इतने गुस्से वाला चेहरा क्यों बना लेते हैं? शामीन ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और शरारती जुमला कसा। मुराद ने अखबार नीचे किया और शामीन की तरफ देखा। इसने जवाब देने की कोशिश की, मगर शामीन के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो खुद को रोक नहीं सका। इसके होठों पर मुस्कुराहट फैली और फिर वो बेसाख्ता था, खिलखिला कर हंस पड़ा। इसकी हंसी लॉन की खामोशी में बहुत भली लग रही थी। अगर आप जैसी शरारती बीवी सामने बैठी हो तो इंसान अपना सारा गुस्सा भूल जाता है शामीन। मुराद ने हंसते हुए जवाब दिया, बस तो फिर फैसला हो गया। मैं रोज आपके साथ ऑफिस जाया करूंगी ताकि आपके मुलाजमीन भी सुकून की सांस ले सकें कि इसका बॉस अब थोड़ा नर्म हो गया है। शामीन ने भी हंसते हुए कहा। दोनों ने एक साथ चाय का घूंट भरा और एक दूसरे की आंखों में देखा। इनकी नज़रों में बाहमी एहतराम, गहरा एतमाद और एक सच्ची मोहब्बत थी, और ये दो बाशऊर दिलों की एक बहुत खूबसूरत और मुकम्मल शुरुआत थी। ख़त्म शुद। तो डियर रीडर्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।